Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine and enjoying your online lectures. Today, this is our 24th lecture overall and 4th lecture of this chapter number 1. The name of the chapter is Quadratic Equations. This is week 7, lecture number 24 and dated August 7, 2020. So as you know that the name of the chapter is quadratic equation, and we have defined a quadratic equation as an equation in which the maximum or highest exponent or power of the variable is 2. That is called quadratic equation. The standard or general form of the quadratic equation is given as ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. And if bx is absent, this term is not here, then ax square plus c is called the pure quadratic equation. And here a is not equal to 0 condition imposed, because if a is equal to 0, then this term will be vanished and the equation become a linear equation. So therefore this condition must be imposed. Before this we have studied equation reducible to quadratic equation, and that was a type 1. And in that type we have studied some equations like ax4 plus bx square plus c equal to 0, where a is not equal to 0. In that form of the equation, or in that type of equation, one term has exponent half of the other, यानी एक में हमारे पास x स्क्वायर टर्म है, दूसरे में x पावर 4 है. That was not directly quadratic equation but can be reduced to a quadratic equation. And we have studied 5 questions of that type yesterday. Now this is another type, and this is type number 2. The equation of the type a into p of x plus b over p of x is equal to c. Here these two terms will be reciprocal of each other. P of x and p of x both are the same term, but in first term p of x is in numerator, while in the second one it is in denominator. So it means that in this type p of x term will be reciprocal of this term. यानी इसका मतलब यह है कि इस टाइप में हमारे पास ऐसे टर्म्स होंगे कि एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल होगा. अब ये a और b तो कांस्टेंट है, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन p ऑफ x वाला टर्म जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे. तो इस टाइप को हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करेंगे? जो रेसिप्रोकल टर्म्स है तो उन दोनों में से एक टर्म को आप y सपोज करोगे. जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हेयर पुट p ऑफ x इज इक्वल टू y. p ऑफ x को अगर आप y पुट कर लोगे तो ये जो p ऑफ x डिनोमिनेटर में है ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर y हो जाएगा. सो यहाँ पे जो भी टर्म होगा इसको जब आप सपोज करेंगे किसी वेरिएबल y या z या t या किसी और वेरिएबल के, तो क्या होगा? दूसरा टर्म जो होगा जो कि रेसिप्रोकल होगा वो 1 ओवर y के फॉर्म में आ जाएगा. So the equation, this one becomes, in the above equation we get the reduced quadratic equation in y as. फिर हम इसको quadratic equation में इससे हासिल करते हैं, और कैसे हासिल होगा? वो reduced quadratic equation होगा. So a as it is लिख लिया, p of x की जगह मैंने y पुट किया, b को as it is लिख लिया, फिर p of x की जगह y और c as it is. तो ay प्लस b ओवर y इज इक्वल टू c. इस इक्वेशन का फॉर्म चेंज करके हमने ये फॉर्म बना लिया. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, इस y को हमने डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस डिनोमिनेटर.
means multiplying both side by y. It becomes ay square plus b is equal to cy. Now arrange this. So ay square minus cy plus c equal to 0 plus ay square minus cy plus b equal to 0. ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इस टाइप में हमारे पास जब भी हमें इक्वेशन गिवन होगा, दो टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो उन रेसिप्रोकल टर्म में से किसी एक को y की सपोज कर ले और दूसरा उसका 1/y हो जाएगा। फिर इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास डिनोमिनेटर में y आ जाएगा। वो डिनोमिनेटर वाला y हमने ख़त्म करना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दैट y वाला टर्म, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हम इसको फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय 3 डिफरेंट मेथड्स, बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उससे सॉल्व करने के बाद हम फिर ओरिजिनल वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। सो ये हमारे पास दूसरा टाइप होगा। इस टाइप के अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में से। सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप ओरिजिनल जो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बना के दिया था उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर कर लें तो ये p ऑफ x है। p ऑफ x की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1, 3/2x स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों हमारे पास क्या है, वो p ऑफ x वाली वैल्यू है। सो a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस b ओवर p ऑफ x इज इक्वल टू c वाला फॉर्म बन गया। अब इनमें से एक को हम सपोज कर लेंगे, इसको सपोज करें या इसको सपोज कर ले, दोनों में से जो भी आप सपोज करेंगे तो आपके पास एक y होगा, दूसरा 1/y हो जाएगा। सो लुक एट दिस, 2x square plus 1 plus 3/2x square plus 1 equal to 4. Let 2x square plus 1 is equal to y, या put 2x square plus 1 is equal to y। ये y हम सपोज कर लेते हैं। तो जब y सपोज करेंगे then the above equation becomes, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा है, अगर आप इक्वेशन ना कहें तो फिर then the above equation becomes। अब देखिए इसकी जगह मैं y पुट करूंगा, 3 as it is आ जाएगा, फिर 2x square plus 1 की जगह y पुट कर लूंगा इक्वल टू 4। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास फिर y आ गया। अब डिनोमिनेटर में से ये y हमने ख़त्म करना है। अब कैसे ख़त्म होगा, ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y वी गेट, ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 3 और ये बन जाएगा 4y। अब अरेंज कर ले, 4y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको आप इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, लेकिन हमारे पास फैक्टराइजेशन आसान है, -4 को स्प्लिट करके हम 3 गेट कर सकते हैं। सो y स्क्वायर एज इट इज -4y, उसको मैंने लिख लिया -3y माइनस y और प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स y शुड बी कॉमन, सो हेयर वी गेट y -3 और लास्ट टू टर्म में से -1 कॉमन कर ले तो y -3। अब y -3 दोनों में से एक कॉमन ले ले y -3, तो ये बन जाएगा y -1 इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि द फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। सो द फर्दर दिस इक्वेशन विल बिकम्स either y -3 equal to 0 or y -1 is equal to 0, because the product of two terms y -3 and y -1 equal to 0। तो इन दोनों में से या तो ये 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा या दोनों 0 हो जाएंगे। So if it is true then y is equal to 3 and if it is true then y is equal to 1। Now if y is equal to 3, अगर y की वैल्यू 3 है तो y हमने क्या सपोज किया था, 2x स्क्वायर प्लस 1 सपोज किया था। तो इट मीन्स कि देन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अरेंज कर ले, ये 1 को इधर शिफ्ट कर ले तो 3 - 1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 1 से 2 आ जाएगा, 2 से डिवीजन कर ले तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। अब स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लूँगा।
जब स्क्वायर रूट लूँगा तो x इज इक्वल टू 1 अंडर रूट, और 1 का जितना भी स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब भी हम स्क्वायर रूट से कोई नंबर निकालते हैं तो उसके साथ क्या लिखते हैं, प्लस माइनस का साइन लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से आ गई, y इज इक्वल टू 3 से। ये ख्याल करें कि y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये डमी वेरिएबल है, ये ओरिजिनल वेरिएबल नहीं थे। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो है ना ये दोनों वैल्यूज सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, ये गलत होगा, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, इसके नंबर आपसे कट सकते हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 2 नंबर दे दे, क्योंकि 2 नंबर का काम आपने छोड़ दिया है। सो लिहाजा ये जो है ना आपने यहाँ ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जबकि y हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल नहीं था। सो अब इस वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू 1 देन इट मीन्स कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि y की वैल्यू हमने सपोज की थी 2x स्क्वायर प्लस 1। सो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1, और इधर शिफ्ट कर ले तो माइनस 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 से डिवीजन कर ले तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले ले तो x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये तीन वैल्यूज हमारे पास इसके ओरिजिनल वेरिएबल के आ गए। तो इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे, सो दिस विल बी द लास्ट फाइनल आंसर। ये सोल्यूशन सेट होगा, मींस के सोल्यूशन सेट में हम वो वैल्यूज देखेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल इक्वेशन को ये तीनों वैल्यूज जो है ये सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज द सोल्यूशन। ये हम यहाँ तक हमारे पास इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह देखें दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 7, x over x minus 3 plus 4x minus 3 over x is equal to 0 is equal to 4। अब देखिए x over x minus 3 और ये x minus 3 ऊपर है, x नीचे है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैंने बताया कि इन दोनों रेसिप्रोकल में से किसी एक को y की इक्वल सपोज कर ले। जब एक को y सपोज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 over y हो जाएगा। सो लेट x over x minus 3 is equal to y. This implies that x minus 3 over x is equal to 1 over y बन जाएगा। Now replacing these values in the above equation. इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है। Then the above equation becomes, ये क्या बन जाएगा, ये y हो जाएगा, प्लस 4 into 1 over y is equal to 4 बन जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y, और ये 4 over y is equal to 4। फिर अब हमारे पास y जो है वो डिनोमिनेटर में है, सो इसको ख़त्म करना है हमने। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y वी विल गेट y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। अब अगेन इसको अरेंज कर लें तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, फार्मूला से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम मतलब अगर आप परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर ले तो वो भी कर सकते हो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मैंने वही मेथड यूज़ किया है फैक्टराइजेशन, ताकि बच्चों को आसानी हो। पहले जो है ना हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किए ताकि मेथड आपको सेम लगे। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने एज इट इज़ लिख लिया, y स्क्वायर और 4 एज इट इज़। इस -4 को स्प्लिट किया, -2 के फॉर्म में लिख लिया। अब -2y को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों को अगर ऐड कर ले तो -4y आ जाएगा। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स y शुड बी कॉमन, यहाँ से y कॉमन करूंगा तो y बच जाएगा, और यहाँ से y कॉमन करूंगा तो -2 बच जाएगा। कॉमन करने का मतलब है कि इसको डिवाइड कर लूंगा y से और इसको डिवाइड कर लूंगा y से, तो ये y -2 बन जाएगा। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स जो है इनमें से -2 कॉमन कर लूंगा तो ये y बन जाएगा, और ये प्लस साइन था लेकिन मैंने माइनस कॉमन किया हुआ है तो दिस साइन विल बी चेंज। यहाँ पे ख्याल करना है कि ये साइन आपने चेंज करना है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। जब ये साइन चेंज कर लूंगा तो 4 को 2 से डिवाइड कर ले, -2
2 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि आपने यहाँ फैक्टर्स गलत बनाए हुए हैं, ये फैक्टर्स फिर आपको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। सो ये हमारे पास ये फैक्टर्स सही थे, तो इस वजह से ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन करेंगे, y-2 कॉमन कर ले तो यहाँ y बच जाएगा और यहाँ पे -2, तो y-2 बच जाएगा। या अगर आप इसको दोबारा लिख ले तो y-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लूंगा। जब स्क्वायर रूट लूंगा तो y-2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और 0 स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो 0 ही आएगा। ये y-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले तो y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू आ गई है, लेकिन ये ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, हमने ओरिजिनल वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जो सपोजिशन हमने की थी उसकी इक्वेशन में पुट कर ले। इफ y इज इक्वल टू 2 तो y हमने सपोज किया था x ओवर x माइनस 3, ये 2 की इक्वल आ जाएगा। अब इस 2 के नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये बन जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या दोनों साइड को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, तो दिस बिकम्स 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x, मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x, इस x को यहाँ शिफ्ट कर ले तो 2x माइनस x इज इक्वल टू ये प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन का क्या मतलब है कि ये वैल्यू अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल में पुट कर ले तो आपके पास दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम आएगा, मींस कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 होल 1 ओवर 6। 2 होल 1 ओवर 6 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा, प्लस 1 कर ले तो 13/6 बन जाएगा। अब 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, और यहाँ 4x माइनस 1 ऊपर है, यहाँ 4x प्लस 1 नीचे है। तो क्या मतलब है इसका कि दोनों टर्म्स जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब दोनों में से कोई भी सपोज कर ले, एक को हम सपोज कर लेते हैं y, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 ओवर y हो जाएगा। 4x plus 1 over 4x minus 1 is equal to y. This implies that 4x minus 1 over 4x plus 1 will becomes 1 over y. Now put these values. Instead of this value we will put y, and instead of this value we will put 1 over y. So the above equation, ये जो blue लिखा हुआ है, this equation will becomes, इसकी जगह y और इसकी जगह 1 over y, तो y plus 1 over y is equal to 13 over 6 आ जाएगा। अब अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स आ गए, एक 6 आ गया, एक y आ गया। तो 6 और y का LCM लेंगे, ये हमारे पास 6y आ जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 6y, दोनों साइड्स को 6y से मल्टीप्लाई कर लें। या अगर आप इस तरह नहीं करते तो लेफ्ट साइड पे LCM ले ले y, तो ये y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, जो आपको इजी लगता है। सो 6y ये जब मल्टीप्लाई करूंगा 6y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, 6 बन जाएगा, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 13y बन जाएगा। सो अरेंज कर ले, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 6 6 आर 36, तो यहाँ 9 4 आर 36, फैक्टराइज इजीली हो जाता है, फैक्टराइज कर लेता हूँ, ये आ जाएगा, यानी फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप फार्मूला से सॉल्व करें। आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है, a की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 13 हो जाएगी और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उस तरीके से कर ले, वैल्यू सेम आएगी वैल्यू y के। अब
ये फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 13 को मैंने स्प्लिट किया -9y और -4y के फॉर्म में लिख लिया, तो 6y स्क्वायर -9y -4y प्लस 6. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स वी कैन टेक 3y एज कॉमन. अगर 3y मैं इससे कॉमन कर लेता हूँ तो ये 3y इससे जब डिवाइड कर लूँगा 2y बन जाएगा, और ये 3y से जब डिवाइड कर लूँगा तो 3 बन जाएगा, तो 2y -3. और लास्ट टू टर्म में से -2 को कॉमन कर लें तो 2y -3. अब दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हम कॉमन कर लेते हैं, 2y -3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3y बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा इक्वल टू 0. नाउ अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0. सो the product of these two terms is equal to 0. It means कि either first term is 0 or second term is 0. अगर 2y -3 is equal to 0 है या 3y -2 is equal to 0 है, अगर ये true है तो 2y is equal to 3/2 बन जाएगा, और अगर ये true है तो y is equal to 2/3. यहाँ से y is equal to 3/2 और यहाँ से y is equal to 2/3. ये दो डिफरेंट वैल्यूज आ गए y के. तो y हमारे पास क्या था, डमी वेरिएबल था. अब ये ओरिजिनल वेरिएबल के हमें वैल्यूज चाहिए, तो जो सपोजिशन हमने की थी उस इक्वेशन में अब वैल्यूज पुट करेंगे कि इफ y इज इक्वल टू 3/2. अगर y की वैल्यू 3/2 है तो y तो हमने सपोज किया था 4x + 1 ओवर 4x - 1, तो ये 3/2 की इक्वल आ जाएगा. सिमिलर इफ y इज इक्वल टू 2/3 तो देन 4x + 1 ओवर 4x - 1 विल बी इक्वल टू 2/3. तो रेड वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं. देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू ब्रैकेट में 4x - 1 इक्वल टू 2 और 4x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया. इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ 3, तो ये आ जाएगा 12 और 3 1 ज़ार 3 -3 बन जाएगा. ये 4 2 ज़ार 8x और प्लस 2 1 ज़ार 2. अरेंज कर लें, 12x - 8x. 8x पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2, और ये 3 नेगेटिव था तो राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, +3 हो जाएगा. लेफ्ट साइड से हमारे पास आ जाएगा 4x और राइट से आ जाएगा 5. 4 से डिवीजन कर ले तो x इज इक्वल टू 5/4. ये x की एक वैल्यू आ गई. अब जो दूसरी हमारे पास y की वैल्यू थी वहां से हम सॉल्व कर रहे हैं कि y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2/3. तो इट मीन्स कि 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4x - 1 और 3 इंटू 4x + 1. अब जब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8x - 2 1 ज़ार 2. यहाँ से आ जाएगा 3 4 ज़ार 12x प्लस 3 1 ज़ार 3. अरेंज कर लूँगा, 8x - 12x इक्वल टू 3 और ये 2 शिफ्ट कर ले तो +2 बन जाएगा. यहाँ से आ जाएगा -4x और ये 5 हो जाएगा. -4 से डिवीजन कर लूँगा तो x इज इक्वल टू -5/4. ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई है x की. तो ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास x था, उसके दो वैल्यूज हमारे पास ये आ गए, एक 5/4 है और एक -5/4 है. तो सोल्यूशन सेट में ये दोनों लिख ले, 5/4 -5/4, या कंबाइन अगर आप लिखना चाहें तो +-5/4 लिख ले, वो भी लिख सकते हो. सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया. इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इसी तरह क्वेश्चन है x - a ओवर x + a और -x + a ओवर x - a इक्वल टू 7/12. वहाँ पे हमारे पास 4x - 1 था और यहाँ पे 1 की जगह a है. तो बाकी क्वेश्चन तकरीबन सेम है. सो ये टर्म और ये टर्म दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. एक को हम सपोज करते हैं y की इक्वल, तो दूसरा जो है वो बन जाएगा 1/y. सो लेट x minus a over x plus a is equal to y. This implies that x plus a over x minus a is equal to 1/y. Now, then the above equation becomes, ये जो ब्लू वाला इक्वेशन है इसकी जगह y पुट कर ले, ये 1/y हो जाएगा. तो y minus 1/y is equal to 7/12. अब डिनोमिनेटर में एक 12 है, दूसरा y है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम बन जाएगा 12y. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 12y, दोनों को 12y से मल्टीप्लाई कर ले तो ये टर्म बन जाएगा 12y स्क्वायर. यहाँ से y कैंसिल होगा तो -12 और यहाँ से 12 कैंसिल होगा तो 7y आ जाएगा. अरेंज कर ले तो 12y स्क्वायर -7y -12 इक्वल टू 0. अगर हम इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया.
अब इसको फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो भी मेथड इजी आपको लगता है, दिस इज अप टू यू। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो -144y² आ जाएगा। -7 के मैंने दो ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट से -144y² आ जाए और सम डिफरेंस से -7 आ जाए। तो वो मेरे पास 16 और 9 है। 16 के साथ माइनस साइन आ जाएगा, 9 के साथ प्लस साइन आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर लूँ तो -7 आ जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो -144y² आ जाएगा। सो -7 को जस्ट मैंने स्प्लिट किया, -16y + 9y के फॉर्म में लिख लिया। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 4y, और दूसरे में से 3 कॉमन कर सकते हैं। तो 4y जब कॉमन करूंगा तो 3y - 4 बच जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन करूंगा तो 3y - 4 बन जाएगा इक्वल टू 0। Now from these two brackets which are same brackets, so 3y - 4 will be common. Here we will get 4y and here we will get +3. So either 3y - 4 equal to 0 or 4y + 3 is equal to 0. So 3y is equal to 4, y is equal to 4/3, and here 4y is equal to -3, so y is equal to -3/4. ये दो वैल्यूज हमारे पास किसके हैं, डमी वेरिएबल x y की है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब बारी बारी जो सपोजिशन हमने की है वो इसमें पुट कर लूंगा। सो इफ y is equal to 4/3, then it means कि x - a/x + a is equal to 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, सो 3 × x - a इक्वल टू 4 × x + a, फिर 3x - 3a इक्वल टू 4x + 4a। अरेंज कर ले तो 3x - 4x इज इक्वल टू 4a, और इसको शिफ्ट कर ले तो +3a, यहाँ से -x इज इक्वल टू 7a आ जाएगा, लेकिन हमें तो +x चाहिए। सो दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा -7y। दूसरी जो y की वैल्यू थी, दूसरी y की वैल्यू हमारे पास थी इफ y इज इक्वल टू -3/4। तो इससे x - a/x + a इज इक्वल टू -3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 4 × x - a इक्वल टू -3 × x + a। ये मल्टीप्लाई करें तो 4x - 4a, ये मल्टीप्लाई करें तो -3x - 3a। 4x के पास ये 3x शिफ्ट कर ले तो प्लस हो जाएगा, और -3a के पास ये 4a शिफ्ट कर ले तो प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा 7x और ये बन जाएगा a, यानी -3a + 4a विच बिकम्स a। 7 से डिवीजन कर ले तो x इज इक्वल टू a/7। ये दो वैल्यूज हमारे पास x के आ गए। ओरिजिनल वेरिएबल के वैल्यूज हमने मालूम किए, तो ये दोनों सेट के अंदर लिख ले, दिस विल बी द सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7a और a/7, ये दोनों इसके सोल्यूशन में लिख लेंगे। ये इसके रूट्स है, ओरिजिनल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। तो 4 क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व किए इस मेथड पे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो आप खुद कर लोगे। बाकी जो है हमारे पास 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इस एक्सरसाइज में अभी तक हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए। एक वो था कि डायरेक्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक टर्म का जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है दूसरे टर्म के वेरिएबल के एक्सपोनेंट का हाफ है। ठीक है, तो हाफ वाले को हम सपोज करेंगे और उससे जो है y² आ जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब ये दूसरा था, दूसरा टाइप है कि इसमें a × p(x) प्लस या माइनस b/p(x) इज इक्वल टू c, यानी एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये दो टाइप हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज वो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तीसरा जो टाइप है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये इस यहाँ तक हमारे पास जो है ये इसका ये लेक्चर ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है आप थ्रू व्हाट्सएप जो हमारे क्लास का ग्रुप है 10th क्लास का उसमें पूछ सकते हो, या जूम की जो क्लास है उसमें पूछ सकते हो, या आप जो है इसकी यूट्यूब चैनल पे जाके जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो उसके में कमेंट्स में जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं आपको जवाब देंगे। सो दैट्स ऑल।
हमारा ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।